Hello friends, this is Alan Murthy. Hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will start new chapter, Statistics, Sankiki. After some basic concepts, we will start new chapter, exercise 14.1. ये हम शुरू करेंगे. चलिए दोस्तों, आज हम नया चैप्टर यानी सांख्यिकी शुरू करने जा रहे हैं. कुछ अवधारणाओं के आधार पर, कुछ अवधारणाओं के बाद जो है, इसको समझने के बाद जो है हम सांख्यिकी के प्रश्नावली जो है 14.1 शुरू करेंगे. डियर फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ collection of organization, analyzing, interpretation and presentation of data. In the previous class 9th, we have studied the classification of given data into ungrouped and grouped frequency distribution, representation of data such as bar graph, histogram, frequency, polygons and mean, median, mode for the ungrouped data. In this chapter, we shall extend the study of measures of central tendency, that is mean, median and mode from ungrouped data to that of grouped data. प्रिय मित्रों, कक्षा 9th में दिए गए आंकड़ों का अभिकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं. आपने आंकड़ों को चित्रीय आलेखों, दंड आलेखों और आयत चित्र निरूपित करना सीख चुके थे. इस अध्याय में हम तीनों मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बढ़ाएंगे. ये पूरा चैप्टर्स के लिए हम जो है शुरू करेंगे. तो द फॉर्मूला बिलोंग्स टू दिस चैप्टर आई हैव गिवन. दिस इज इन योर स्क्रीन. द फॉर्मूला, सी प्रॉपर्ली. Okay friends, let us move towards question number 1. This is in your screen. Exercise 14.1. A survey was conducted by a group of students as part of their environmental awareness program, in which they collected the following regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. Table दिया हुआ है. Which method did you use for finding the mean and why? हिंदी में विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 50 घरों में लगे हुए पौधों का संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को दिया गया है. प्रति घर का माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है वो हम लोग बताना. चलिए दोस्तों करते हैं. तो फ्रेंड्स, दिस इज द टेबल. नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, क्लास मार्क्स. आई ऑलरेडी wrote here. See here 0 to 2 here. Class interval is given 0 to 2, 2 to 4, okay, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. These are given, okay. Now 8 to 10 and 10 to 12 and 12 to 14. 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. The number of houses are also given here. That is 1 to 1, 5, 6. Already given here 2, 3. Okay. These are the number of houses. This is indicated as Fi. This is frequency. Okay. Now the class marks already given formula. Class mark lower unit plus higher unit, higher limit add together and dividing by 2 we get the class marks. The already given here formula. Okay. यानी जो वर्ग चिन्ह है निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को योग करके जो 2 से भाग देने पर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं. जैसे 0 plus 2, 2 divided by 2, that is 1. 2 plus 4, 6, 6 by 2, 3. Now what is the difference here? 2 difference. Now add it to 5, 7, 9, 11 and 13. यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 2 is the difference. Okay. Now here Fi, Xi. There are formula, direct method, deviation method. These all things are here.
so we will use the direct method. Okay, now fi xi, I wrote here fi xi, ये multiply this one, यानी ये दोनों को जो है इंटू करेंगे, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, okay, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39. This is okay. Now we'll write here, this is total, this is कुल हिंदी में. Now sigma fi, sigma means sum of numbers. Okay, so sigma है, sigma का सिंबल थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, ये सबको ऐड कर दीजिए, आपको जो है 20 आपको मिलेगा. और उसी तरह यहाँ पर भी सिग्मा fi xi, जितना सिग्मा fi xi है सबको हम लोग प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पर 162 हमको मिलेगा. ठीक है. नाउ here we can write here the sigma fi equal to 20 and sigma fi xi equal to 162. Now we know that mean x bar equal to sigma fi xi by sigma fi. ये फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का, इसमें हिंदी में लिख लीजिए माध्य. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यूज हियर, 162 by 20. आपको ये डिवीजन करने के बाद जो है आपको 8.1 आंसर मिलेगा. ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. बट दे आस्क्ड टू क्वेश्चन हियर. क्या क्वेश्चन पूछा है, ये क्यों ये मेथड यूज किया. we have to write here, we have used this method, direct method, because of the values, numerical values are very small. We have used this direct method. We use direct method because of numerical values are very small, because the numerical values are small. जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो स्मॉल है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया है. इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष विधि का हमने यहाँ पर लिख देंगे, हमने प्रत्यक्ष विधि, इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया. वाई भी पूछा है, क्यों पूछे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसका जो संख्यात्मक मूल्य है वो कम है. संख्यात्मक मूल्य लिख सकते हैं, संख्यात्मक मूल्य कम है. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आंसर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो डायरेक्ट मेथड यूज किया है, खाली हम लोगों को ये दोनों दिया हुआ है एक क्वेश्चन में. दिस बोथ जो चार्ट दिया है, we have to calculate the class mark is the sum of lower limit and upper limit divided by 2. ये करने से आ जाएगा, यानी क्लास मार्क ये वर्ग चिन्ह जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जो है प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो ये आंसर आएगा. फिर इसके बाद fi xi, ये fi और xi इंटू करने से आएगा. फिर ये सबको प्लस कर दिया, सिग्मा fi 20 और ये सबको प्लस सिग्मा fi xi 162, दोनों को डिवाइड कर दीजिए. फार्मूला ये है, we know that formula mean equal to sigma fi xi by sigma fi, दोनों डिवाइड कर दिए 8.1. तो वहां पर क्वेश्चन पूछा why you use this method. We have used this method, direct method, because of numerical values are small. तो हमने प्रत्यक्ष विधि इसलिए प्रयोग किया कि इसमें संख्यात्मक मूल्य जो है कम है. ठीक है फ्रेंड्स, यू कैन टेक स्नैप. लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए दोस्तों. Okay friends, let us move towards the question number 3, exercise 14.1. This is in your screen. The following distribution shows the daily pocket allowances of of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 80.
फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालना है। हिंदी में निम्नलिखित जो बंटन दिया है मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जो जेब खर्चा है दर्शाता है। तो जेब खर्चा का जो माध्य है वह 18 दिया हुआ है। लुप्त बर्ता यानी एफ को ज्ञात कीजिए बोला, तो यहाँ पर सारणी दिया हुआ है, हम कर सकते हैं। चलिए करेंगे, चलिए। So friends, this is the question number 3, exercise 14. Solution: the diagonal pocket allowances is given here. Interval में और number of children and class marks you have to calculate, and we will use assume method और कल्पित विधि हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। Now here बच्चों की संख्या दिया हुआ है, दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह हम लोग निकालना है। वर्ग चिन्ह एज यूजुअल हम लोग कैसा निकालते हैं, तो इसको ये दोनों को प्लस करेंगे पहले, यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज वी गेट 12। तो सिमिलरली 28 डिवाइड बाय 2 14। तो आफ्टर टू एडिंग 2 का कॉमन डिफरेंस है, आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, 16 विल गेट 18 एंड 20 22 एंड 24। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अज्यूम मेथड यूज कर रहे हैं, हम लोग कल्पित विधि यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे। लेट ए, दिस इज ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नंबर को ए मान लीजिए, या इसका बाद जो है इसको डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 12 माइनस 18 इक्वल टू -6, हमको यहाँ पर डी आई का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली 14 माइनस 18 -2, 16 minus 18 equal to minus here we got will get -4, this will -2, and 18 minus 18 will get 0, and 20 minus 18 we get 2, and 22 minus 18 we get 4, and 24 minus 18 get 6। यानी हमको यहाँ पर जो है -6 -4 -2 0 2 4 6 हमको मिल गया। Now we got di, वैल्यू ऑफ di हमको मिल गया है, यहाँ पर fi है, तो fi di का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। Now 7 6 42 -42, क्योंकि यहाँ माइनस है, डोंट फॉरगेट दिस वन। 7 6 42 है, 6 4 24 -24, 9 2 18 -18, and 13 0 0, then f into 2 2f, and 5 4 20, and 4 6 24। we have to calculate this value, okay, unknown value, ये जो f का मान है हम लोग को ज्ञात करना है। now already given sigma f, इसको हम लोग प्लस करेंगे, सिग्मा f जो है आपको मिलेगा 44 प्लस f मिलेगा, ये सबको प्लस करें क्योंकि वेरिएबल है, इसको अलग कर दीजिए, नंबर को सबको जोड़ दीजिए 44 प्लस f। तो यहाँ पर हमको सिग्मा fi di हम लोग निकालना है। सिग्मा fi di हमको क्या मिलेगा, दिस इज, यहाँ पर अगर हम 2f वेरिएबल है, इसको अलग कर दीजिए और माइनस वाला नंबर को अलग करके प्लस वाला नंबर को अलग कर दीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, देन वी विल गेट 2f minus 40। देन वी गेट fi di का वैल्यू जो है 2f minus 40 मिलेगा। यानी हमको फार्मूला में अज्यूम मेथड में हम लोग यूज करेंगे, तो अज्यूम मेथड को फार्मूला में लिखने से पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन है लिख लेंगे। here a equal to 18, okay, here a equal to 18, and sigma f equal to 44 plus f, and sigma fi di 2f minus 40। तो ये वैल्यू जो है हमको यहाँ से टेबल से हमको मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग मीन निकालेंगे। अब मीन का जो है वैल्यू दे दिया है, मीन इक्वल टू, मीन यानी x बार इक्वल टू दे दिया है 18, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन 18। तो यहाँ पर माध्य हिंदी में हम लिखेंगे, माध्य जो है ऑलरेडी 18 दे दिया। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट मीन इक्वल टू यानी x बार, मीन यानी माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर अज्यूम मेथड में, यानी कल्पित विधि में ये फॉर्मूला है सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। तो मीन का वैल्यू दे दिया है 18 यहाँ पर दे दिया है। नाउ a प्लस 18
plus sigma fi di, that is 2f minus 40 divided by this is sigma fi, that is 44 plus f, 44 plus f. तो ये 18 माइनस 18 यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए ट्रांसफर करके, दैट विल गेट रिमाइनिंग वैल्यू 2f माइनस 40 एंड दिस इज f. तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने से पहले हमें सोचना है, यहाँ ट्रांसफर करने के बाद जो है जीरो हमको मिलेगा. 18 माइनस 18 क्या है? जीरो. जीरो इक्वल टू 2f माइनस 40 बाई 44 प्लस f. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2f माइनस 40 इक्वल टू जीरो. देन 2f इक्वल टू 40, देन f इक्वल टू 40 बाई 2, कैंसिल करने के बाद 20, यानी f इक्वल टू 20. ये द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी. ओके, जो हमको ज्ञात करना है, जो अज्ञात वैल्यू है उसका वैल्यू आ गया. लास्ट में हेंस लिख दीजिए और अतः लिख दीजिए. अतः f का मान 20 है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ f इज 20. इट्स वेरी इजी. अब देख लीजिए, ये दो सारणी दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है. गिवन यू कैन राइट हियर, गिवन दिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीन इक्वल टू 18, यानी माध्य जो है यहाँ पर, माध्य जो है यहाँ पर दे दिया है, तो 18 दिया हुआ है. ठीक है, तो अब ये सारणी से जो है हम यहाँ कैलकुलेशन कर लिया, f का वैल्यू आ गया. यू कैन टेक स्नैप. ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी इजी. यू कैन प्रैक्टिस प्रॉपरली, देन यू विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, अच्छा मार्क्स मिलेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 14.1. दिस इज इन योर स्क्रीन. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following distribution mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है. Now find the mean number of mangoes in a packing boxes. Which method finding the mean did you chosen? तो यहाँ पर कौन सा मेथड है पूछा है. यहाँ पर ना हिंदी में, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे. इन पेटियों के आमों की संख्या जो है भिन्न भिन्न थी. पेटियों की संख्या के अनुसार आम का बंटन निम्नलिखित था. तो आमों की संख्या दिया हुआ है, पेटियों की संख्या दिया हुआ है. तो यहाँ पर एक पेटी में रखे गए आमों के माध्य ज्ञात कीजिए. आपने माध्य ज्ञात करने की किसी विधि का प्रयोग किया वो भी हम लोग बताएं. चलिए दोस्तों करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 14.1. सॉल्यूशन. द नंबर ऑफ मैंगोज, आमों की संख्या यहाँ पर सारणी में दिया हुआ है. नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन. दिस 2 कॉलम्स आर गिवन हियर. नाउ वी हैव टू यूज दिस मेथड, दैट इज अज्यूम मेथड, यानी कल्पित विधि यूज करेंगे क्योंकि नंबर जो साइज है वो भी थोड़ा बड़ा है. हम लोग अज्यूम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द क्लास मार्क, यानी वर्ग चिन्ह. क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट और हायर लिमिट को दोनों को ऐड करके डिवाइडिंग बाय 2, दैट इज 102 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 51 मिलेगा. दैट इज 108 को अगर हम लोग डिवाइड करें बाय 2 से तो 54, यानी इसका डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस जो है 3 मिल गया, तो 3 ऐड होते चले जाएगा तो क्या होगा? 57, और ये हो गया 3 ऐड कर दिया 60, दैट इज 63, यानी 57, 60, 63. तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, दिस इज ए. तो इसको ए मान लेंगे, लेट दिस इज ए. नाउ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. इट्स वेरी सिंपल. तो हम लोग यहाँ पर 51 माइनस 57, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? -6, दैट इज 54 माइनस 57, दिस इज इक्वल टू -3, दैट 57 माइनस 57 इक्वल टू 0. 57 minus 57, 0. Now 60 minus 57 equal to 3 and 63 minus 57 equal to that is 6. तो यहाँ पर हम लोग को डी आई का वैल्यू हमको मिल गया है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस 50 एंड इंटू 6, क्योंकि एफ आई डी आई दोनों जो है इंटू कर दिए. 15 6 90, दैट इज साइन माइनस है तो -90, दैट इज 110 इंटू 3, that is 330 minus 330. Now 0 into 135, this is 0, and 115 into 3, that is 345. देखिए 3 5 15 1 3 1 3 4 3 1 3. Now 25 into 6, 150.
नाउ वी गॉट दिस इज एफ आई डी आई का मान जो है हम लोग को ये दोनों इंटू करने के बाद ये मिल गया है, ठीक है। नाउ सिग्मा एफ आई, तो यानी सबको यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा दिस इज 400, ठीक है। नाउ सिमिलरली हियर सिग्मा एफ आई डी आई, तो माइनस वालों को अलग प्लस कर दीजिए, उसका माइनस का साइन आ जाएगा, और ये प्लस को अलग कर दीजिए, फिर दोनों को आप डिफरेंस कर देने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा दिस इज 75. How you get 75? Once again see here, we add this one, this same sign है, तो इसको ऐड करेंगे, फिर दोनों को माइनस करना, विल गेट 75. तो यहाँ पर हमको आगे सॉल्व करना है, वी यूज दैट इज अज्यूम मेथड, यानी कल्पित विधि को हम लोग ने यूज करना है। नाउ हियर विल राइट हियर a equal to this is 57. Okay friends, now sigma fi got 400, ठीक है। now sigma fi di 75. now we know that mean equal to formula, mean x bar equal to यानी माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, a का वैल्यू हम लोग पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या है 57, दिस इज 57 प्लस fi di, दैट इज वी गेट 75 एंड सिग्मा fi 400, ओके। तो यहाँ पर 57 प्लस 75 बाई 400 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमको मिलेगा 0.1875, यानी हमको यहाँ पर डिवाइड करना है कैंसिल करके, ऐसा भी रफ वर्क आप करिए, तो इसका बाद हमको जो है 0.1875 हमको मिलेगा। नाउ ऐड इट, विल गेट 57.1875, तो हम दो डेसिमल को अप्रोक्सीमेटली वी विल गेट 57.19, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में इसको हैंस लिख दीजिए जो भी मिला है, और लास्ट में हम लोग हिंदी में अतः जो भी प्रश्न में पूछा गया है वो लिख दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। आप अज्यूम मेथड यूज करेंगे 57 के मान के, फिर इसका बाद हम लोग यहाँ डी आई का वैल्यू निकाल दीजिए। डी आई कैसा निकलेगा, ये दोनों को माइनस करना है, यानी ए इसमें से इसको माइनस करना है, यानी एक्स आई, ये सभी एक्स आई का वैल्यू है, और ये जो है वैल्यू है अज्यूम। we will subtract 51 minus 57 and 54 minus 57 like this, will get di. After getting di, we multiply the fi and di, the value of fi and di, will get the fi di. After this process we add this number, this is like sigma fi का तरह है, और we will add this sigma fi di, will get here. Now after getting these both value, we'll put the फॉर्मूला में रख दीजिए, यहां पर आंसर आपको आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यू कैन टेक स्नैप। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 14.1। दिस इज इन योर स्क्रीन, इट इज इन इंग्लिश और हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस। So friends, question number 7 is, this is very important question. Question number 7, exercise 14.1 solution. This is here given two columns. Concentration of SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बारंबारता यानी Fi दिया हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या है, द सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो है 0.02 और ये दोनों प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने से 0.06 हमको मिलेगा। नाउ सिमिलरली प्रोसीड लाइक दिस, 4 करते जाए 0.10, 0.14, ओके, 0.18 एंड 0.20 यानी 0.22। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह मिल गया है। नाउ वी विल गेट सिंपली डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर लेंगे इसको, Fi Xi। आप एग्जाम में कोई मेथड नहीं बताए तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज, यू कैन यूज एनी मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड,
ओके, द स्टेप डिविएशन मेथड इज रिमूव्ड, ओके, डोंट यूज दैट वन। तो यहाँ पर जो है एफ आई एक्स आई हम लोग निकालेंगे, 4 से इसको इंटू करने के बाद हमको 0.08 यानी 4 2 जा 8, 0.08 मिलेगा, और 9 6 जा 54 यानी 0.54, ओके, 9 10 जा 90 दैट इज 90, 9 10 जा 90 90, और 2 14 28 यानी 28, और 4 इंटू 18 72 यानी 0.72, और दिस इज 2 इंटू 22 दैट इज 0.44। ये जो है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द एफ आई एक्स आई वी गेट दिस वन, यानी ये दोनों को गुना करने के बाद जो है हमको ये वाला वैल्यू हमको मिलता है। नाउ विल गेट हियर सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई जो है ये सबको प्लस कर दीजिए तो हमको यहाँ पर 30 मिलेगा। उसी तरह सिग्मा एफ आई एक्स आई तो इक्वल टू इसको ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग दिस वन विल गेट 2.96। ये जो वैल्यू है अब हमको फार्मूला रखना है। यू कैन राइट हियर यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30 एंड सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू 2.96. So we'll put this values in the formula. What is the formula? Here we know that mean x bar equal to sigma fi xi by sigma fi. तो ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, माध्य का प्रश्न कभी भी आएगा। आप दो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, कल्पित विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये दोनों में से कोई भी विधि आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष विधि को प्रयोग किया है ना, आई यूज्ड हियर डायरेक्ट मेथड। तो विल पुट हियर सिग्मा एफ आई 2.96 डिवाइड बाय दैट इज 30। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना है रफ में, तो आफ्टर डिवीजन आपको डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पर हमको मिलेगा दैट इज 0.09866। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हम लेंगे 0.99। तो ये वैल्यू जो है आवर रिक्वायर्ड आंसर है। तो एंस में आप लास्ट में लिख दीजिए, अथा करके लिख दीजिए। ओके, वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू राइट एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सी हियर वंस अगेन। तो यहाँ पर दो हमको ये वैल्यू दिया हुआ है। एक्सरसाइज 14.1 बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, देख लीजिए। और ये सारणी में से हमको क्या निकालना है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसा निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड करके बाई 2 करेंगे। फिर इसके बाद वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, we multiply the fi and xi, we will get these values. After this process we will add these all values fi के जितना भी वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसी तरह सिमिलरली we add fi and xi 2.96. तो this value we put this value in the formula whatever given here, the direct method formula में fi xi by sigma fi में हम लोग वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर साइड में आप रफ वर्क करेंगे तो आपको 0.099 आवर रिक्वायर्ड आंसर विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये हैंस लास्ट में लिख दीजिए, विल राइट हैंस द व्हाट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अतः हम लिखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। हमने कुछ अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिया हुआ है आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। वी विल कंसल्ट अगेन, टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।